Perfect. So बच्चों, in our last session, what we did, we performed the operations of the queues. आपको पता है, there are two operations that we can perform in a queue. One operation is called NQ, inserting an element in the queue, and we can also remove an element from the queue, that is called DQ. ठीक है, NQ and DQ हम लोग करते हैं queues के अंदर. Now हम लोगों ने NQ का पाइथन का कोड तो लिख लिया था, but we didn't write the code for the DQ. So first we are going to write the code for the DQ, and then फिर हम लोग start करेंगे linked list as well. ठीक है, and again लिंक लिस्ट थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल आप लोग को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप लोग को वो भी मुश्किल नहीं लगना चाहिए. अगर इस वीक हम लोग ये अपना एडिटीज का कोडिंग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन हो नहीं पाएगी, आई डोंट थिंक सो. अगला हफ्ता भी हमें लग जाएगा, बिकॉज वी हैव अनदर डाटा स्ट्रक्चर दैट वी हैवंट स्टार्टेड. अभी तक हम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं करा है. दैट डाटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइनरी ट्री. तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ADT, abstract data type का पार्ट है आपका, that is called binary tree. So you know that in ADTs हमारे पास लेफ्ट राइट लेफ्ट नोड, हमारे पास नोड्स होती हैं, पॉइंटर्स होते हैं. बट इन बाइनरी ट्री हमारे पास दो दो पॉइंटर होंगे, एक पॉइंटर भी नहीं होगा. वी विल बी हैविंग टू पॉइंटर्स. तो जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे, अभी नहीं. लेट मी शेयर माय सेकंड स्क्रीन विद यू पीपल. बच्चों, वेयर इज माय पाइथन स्क्रीन, एंड हियर यू गो. तो मैंने अपनी पाइथन स्क्रीन बच्चों आप लोगों के सामने शेयर करी. नाउ लेट्स सी. पहले में जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने NQ का कोड लिखा था, वी नीड टू कॉपी दैट कोड ऑफ कोर्स. तो वो कोड मैंने आप लोगों को दिखा देता हूं, पहले कॉपी कर देता हूं. और एक क्विक रीकैप भी दे देता हूं आप लोग को उस कोड का. So this was the code that we performed. We declared a queue as a 1D array having 10 elements starting from 0 till 9. Then we told that the tail pointer will be initialized with the null value. The head pointer will be pointing towards the null value, and the total numbers in queue are, the number of elements in the queue currently, of course, 0, and the maximum numbers the queue can contain will be 10. And I initialize a variable that was item that we need to insert in the queue with none, that was no value, or we can say empty value. Then हमने यहाँ पे NQ का एक प्रोसीजर बनाया था. The item that we need to insert was passed as a parameter. The name was NQ. Num in Q and TP was declared as global because we need to update their values throughout the code, of course. Then the first condition that we check, that if number of items in a queue are less than maximum items, then we are going to insert the item. Else हम लोग simply display करवा देते queue is full. We have one of our student, हमारे एक स्टूडेंट थे आज, दाऊद. So he requested के सर मुझे आप क्यू फुल करके दिखाएं जरा. So हमने आज क्यू फुल भी करी थी. It took a lot of time, but it was a request from him. So हमने यहाँ पे क्यू को फुल की थी, क्यू को फुल किया था. So I'm going to do that in this session as well. ठीक है, अगर आपकी क्यू फुल नहीं है, then we need to check that if tail pointer is pointing, that is max length of the queue 10 minus 1 9. If the queue pointer is not pointing towards the last element, then we can simply increment the tail pointer. Else we are going to wrap back the tail pointer to 0. ये मैंने आप लोगों को बताया था 0 क्यों करते हैं, because we need to move that pointer from the last element to again the first element. And then फिर हम लोगों ने अपना element insert करा था, and we increment the number in queue plus number in queue plus 1, and we did that. Now we are going to write an algorithm to remove an element from the queue. ठीक है,
तो बच्चों आप लोग को अच्छी तरह पता है द एलिमेंट दैट वी रिमूव फ्रॉम द क्यू इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड पॉइंटर। हमेशा कहां पॉइंट करता है? इट पॉइंट टुवर्ड्स द हेड पॉइंटर। सो the first element that we need to remove is pointing towards the head pointer, and the value will be, head pointer will be equal to 0। इसकी वैल्यू मैंने पहले नल करवाई थी, अब मैंने 0 करवा दी, बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट इज एट 0 इंडेक्स। द फर्स्ट एलिमेंट इज एट 0 इंडेक्स। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, वी आर क्रिएटिंग इट एज अ फंक्शन। रीजन मैं फंक्शन क्यों बना रहा हूं बच्चों? बिकॉज द एलिमेंट दैट आई विल बी रिमूविंग फ्रॉम द क्यू, तो वो एलिमेंट में डिस्प्ले भी करवाऊंगा, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। सो डी क्यू, वी कॉल इट डी क्यू। नो पैरामीटर्स विल बी पास्ड, एंड नाउ आई एम इनसाइड द फंक्शन। द वेरिएबल दैट आई नीड टू चेंज, दो वेरिएबल्स को मुझे चेंज करना है, वैल्यूज को। सो आई विल बी डिक्लेयरिंग देम ग्लोबल। वन विल बी ऑफ कोर्स नम इन क्यू, बिकॉज this time I will be reducing the value. When I was entering an element, मैं num in q की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा था +1, बट जब रिमूव करूंगा तो -1 भी तो करना होगा बच्चों। सो दैट्स व्हाई इसको मैंने ग्लोबल डिक्लेयर करा है। देन आई हैव अनदर एलिमेंट दैट इज कॉल्ड हेड पॉइंटर। सो हेड पॉइंटर की वैल्यू को भी क्या करना होगा? अपडेट करना होगा। सो नाउ आई एम इनसाइड द लूप बच्चों, मैं लूप के अंदर आ गया। द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू चेक इज कोई एलिमेंट है भी क्यू के अंदर या नहीं। if there is no element in the queue, then I need to just display queue is empty। so सर ये कैसे चेक करेंगे? सिंपली मैंने चेक किया बच्चों, num in queue, sorry, if num in queue is equal to, double is equal to आएगा, is equal to 0, this means I don't have any element in the queue। तो मैंने सिंपली प्रिंट करवा दिया, प्रिंट queue is empty, no way home थोड़ी, no value to display, ठीक है। एंड नाउ अगर ये नहीं है तो दिस मींस आई कैन रिमूव एन एलिमेंट। तो एल्स नाउ द आइटम दैट आई नीड टू रिमूव बच्चों को मैंने कॉपी करवा दिया, दैट इज ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड पॉइंटर। तो मैंने यहाँ पे बता दिया आइटम दैट आई नीड टू रिमूव इज एट द हेड पॉइंटर, ठीक है। सो वॉट एवर द वैल्यू इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द हेड पॉइंटर, वो मैंने कॉपी करवा दी आइटम के अंदर। What I did now, I need to update the value of head pointer। तो मैंने सिंपली हेड पॉइंटर की वैल्यू अपडेट करी। इफ हेड पॉइंटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू -1, तो मैंने बच्चों यहां पे चेक करा है कि अगर मेरा हेड पॉइंटर आखिरी इंडेक्स तक पहुंच चुका है, तो देन आई नीड टू अपडेट माय हेड पॉइंटर टुवर्ड्स 0। और अगर वो अभी आखिरी इंडेक्स तक नहीं पहुंचा है तो एल्स I just need to update it. I just need to increment my head pointer. That will be head pointer is equal to head pointer +1. Now moving ahead, moving forward. The item I need to remove वो मैंने कॉपी कर दिया, हेड पॉइंटर की वैल्यू को अपडेट कर दिया। और क्या करना है इसके अंदर? आई थिंक वी आर गुड। हाँ बस अब मुझे यहाँ पे सिंस वी आर रिमूविंग एन एलिमेंट, तो num in q will be equal to num in q -1, और मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ पे रिटर्न आइटम that I will be removing, and we are done with our function बच्चों। We are done with our function। We have few questions, let me see। Yes, sir, we need to remove
we need to reduce the value of num in q to -1 because we are reducing the item from the array. ठीक है, तो बच्चों अब एन क्यू और डी क्यू करके देखते हैं जरा. पहले मैंने यहाँ पे एन क्यू किया. लेट्स से आई इंसर्टेड द आइटम इमाम. मैंने एक और आइटम इंसर्ट किया यहाँ पे एन क्यू रिकॉर्डिंग. इमाम रिकॉर्डिंग बेटा आई विल अपलोड. मुझे एक्चुअली कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं करी है. द रिकॉर्डिंग्स दे प्रोवाइडेड मी, उसमें से मिसिंग है कुछ रिकॉर्डिंग्स. तो जैसे वो मुझे मिलती है मैं आई विल अपलोड दैट. ठीक है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया बच्चों फर्दर एलिमेंट्स अरीशा, एन क्यू, अनस, एन क्यू, शामिर, एन क्यू, जैन. ठीक है, नाउ बच्चों लेट मी प्रिंट द क्यू एज वेल. ये तो एन क्यू किया है मैंने अभी सिर्फ. नाउ यू कैन सी ऑल द एलिमेंट्स आर बीइंग इंसर्टेड इन द क्यू. लेकिन आप लोग को अब अच्छी तरह पता है व्हेन वी रिमूव फ्रॉम द क्यू द एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द हेड. तो द फर्स्ट वैल्यू दैट विल बी रिमूव विल बी इमाम. एक काम करना भूलिए बच्चों, में जब मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ ना एलिमेंट, एक काम और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, वरना फिर मुझे अनस बोलेंगे सर आपने ये नहीं करा. ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर बुक या किसी कोड का पार्ट नहीं, हम अपनी तरफ से खुद से कर रहे हैं. तो क्यू एचपी हेड पॉइंटर की वैल्यू भी क्या करवा दी मैंने, नन करवा दी. तो जो एलिमेंट रिमूव करूंगा वहां पे मैं क्या प्लेस कर दूंगा, नन प्लेस कर दूंगा. तो द फर्स्ट एलिमेंट दैट विल बी रिमूव विल बी बच्चों इमाम. फिर मैं अगर डी क्यू करूं अरीशा, फिर मैं डी क्यू करूं अनस एंड सो ऑन. सो लेट मी परफॉर्म द डी क्यू ऑपरेशन एज वेल. DQ, let's print the values as well. Print, because it's a function, so we can print the values. DQ, दो दफा DQ कर देते हैं बच्चों. DQ. So now let's play the code. Now you can see this was our Q. When we remove DQ twice, the first element that was removed was Imam. The second element that was removed was Arisha. अब मैं वापस से DQ करूंगा तो क्या होगा, Anas will be removed. So let's see. And you can see now Anas is removed and we have none. अब मैं अगर वापस से इंसर्ट करूंगा ना बच्चों, तो द वैल्यू दैट विल बी इंसर्टेड विल बी एट दिस प्लेस. वो यहां पे इंसर्ट की जाएगी. तो अगर मैं यहाँ पे कुछ एनक्यू करता हूं, लेट्स से एनक्यू हसन, so let's see Hassan is being inserted from the tail. So elements are inserted from the tail and removed from the head. So that is the concept of Q. ठीक है, आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. अनस की रिक्वेस्ट आ गई, कोई नई चीज आई है अनस की. जैन का क्वेश्चन है, जैन आपके क्वेश्चन को आंसर कर दो. सर इस बार भी आपने क्यू एच बी नन नहीं किया. अच्छा आपने पहले ही बोल दिया था अनस. मैंने कर दिया भाई, तुम्हारा मैसेज पढ़ने से पहले मैंने कर दिया था. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. हाँ लेट्स, जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था बच्चों, अब जब आप एलिमेंट इंसर्ट करते रहते ना, तो टेल पॉइंटर यहां पर आया, फिर टेल पॉइंटर यहां पर आया, फिर टेल पॉइंटर यहां पर आया, फिर टेल पॉइंटर यहां पर आएगा. देन आपके पास
एरे में आपकी क्यू में जगह अवेलेबल है, तो वो हम लोग टेल पॉइंटर को जो 0 करवाते थे ना, तो हम घुमा के वापस यहाँ पे टेल पॉइंटर को लाएंगे और वैल्यूज को सेव करवाएंगे। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टेल पॉइंटर। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करता रहूं, अब यू कैन सी, लेट्स इंसर्ट जॉन। जॉन बड़े दिनों बाद मुझे नजर आए, पता नहीं शायद लेते होंगे, मैं नोट नहीं करता हूँ। सो लेट्स एनक्यू जॉन। फिर एनक्यू कर दिया, फिर एनक्यू कर दिया मैंने। सो लेट्स प्ले द कोड। सो यू कैन सी जॉन, अभी भी एक वैल्यू बची है, 2 दफा जॉन को करता हूं मैं ऐड वापस से। तो बच्चों नाउ यू कैन सी के अब हमारी जो ये फ्री पॉइंटर्स थे ना, ये फ्री जगह थी, ये भी यूटिलाइज हो गई। अब मैं वापस से अगर करता हूँ एनक्यू जॉन, तो दिस स्पेस विल बी ऑक्युपाइड एज वेल। फिर मैं एनक्यू करता हूँ, देन दिस वैल्यू विल बी ऑक्युपाइड एज वेल। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्यूज बच्चों, कि एलिमेंट्स आर इंसर्टेड फ्रॉम द टेल एंड दे आर रिमूव फ्रॉम द हेड। ठीक है। ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब। सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन था हमारे पास। लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। Zen was asking सर, लेंथ क्यू माइनस वन इंडेक्स चेक करने के लिए कर रहे हैं। ये देखो, ये हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर एचपी का इंडेक्स 9 हो जाए, फॉर एग्जांपल देखो क्या नाम है तुम्हारा, जेन। मैं एलिमेंट इंसर्ट करता रहा, रिमूव करता रहा, करता रहा, रिमूव करते 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 आई रीच्ड एट 9th इंडेक्स, दैट वाज जॉन। सो वापस से देखो, अब मेरे पास क्यू में एलिमेंट्स हैं, लाइक जॉन यहाँ पे भी है, तो मुझे ये भी रिमूव करना हो, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे ये चेक करने के बाद वापस से एचपी की वैल्यू को क्या करवा रहा हूँ, 0 करवा रहा हूँ, ताकि अब मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकूँ। ठीक है। तो दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट वी आर यूजिंग दिस इंडेक्सिंग मेथड। तो बच्चों दिस कोड आई विल शेयर सेपरेटली विद यू पीपल, ताकि आप लोग जब रिविजन कर रहे हो तो आप लोग के पास एन क्यू डी क्यू ऑल द कोड्स आर अवेलेबल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर previous screen again, and now let's write down the algorithm for linked list as well. But before we start linked list bachcho, let me give you a quick recap about the linked list. So when we talk about the linked list, I hope you people remember that the linked list is having two things. The first thing is called the data, and the other thing is called the pointer. So if we have elements, we have few pointers as well. One pointer is called the head pointer. The initial value of the head pointer is null, indexing because we are indexing from 0, 1, 2, 3,
4, 5, 6. And we have one free pointer that is used to point towards the free spaces. And इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास? That will be 0. Because the first free space that we are having is at this 0 index. तो इनिशियली बच्चों आप लोग को याद होगा, पहले इंडेक्स का पॉइंटर लाइक 0 का पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स 1, 1 का पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स 2, 2 का पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स 3, 3 का पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स 4, 4 का पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स 5, 5 का पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स 6 and 6 का पॉइंटर पॉइंट टुवर्ड्स null. This means our list is being ended over here. So list में आपके पास हमेशा याद रखना है दो चीजें होती हैं. One is called the data and the other one is the pointer. Now let's insert elements in the list. The first element I inserted बच्चों in the list was, let's say, Saif. अच्छा, इनिशियली डेटा को हम लोग क्या करवा सकते हैं? सूडो कोड्स में नल करवा सकते हैं. ठीक है, नल करवा सकते हैं हम लोग. So the first data I entered was Saif. Now the value of free pointer will be 1 and your head pointer will be pointing towards Saif, and Saif ka pointer now will be pointing towards -1. So this is the concept of linked list. Further, I added another element, and the next element was varchar. नहीं चले, varchar नहीं करते भाई, Saif नाराज हो जाएंगे. ठीक है. So the next element, let's say, was Ali. अब क्या होगा? The head pointer will be pointing now towards बच्चों Ali. Free pointer will be pointing towards 2 and Ali का pointer will be pointing now towards Saif. तो Saif का इंडेक्स क्या है बच्चों? Saif का इंडेक्स है सर 0. Now the next element that we have was Hamad. Now what will be the values? Head pointer will be pointing towards Hamad. Free pointer will be pointing now towards 3 and Hamad ka pointer will be pointing towards now 1 बच्चों. That will be Ali. अब I will be adding another element and you guys will be telling me the answer. The next element was Zubaida. Now please tell me the values. Free pointer, anyone? What will be the value for free pointer? Anyone? कोई बच्चा भी बता दे मुझे. Usually Zain बता देते हैं हमें. So let's see. Anas ने बता दिया sir, free pointer will be pointing towards 4. Head pointer. Yes, Ali Zain, your answer was right. Head pointer. Anyone? Head pointer now will be pointing towards 3 and Zubaida ka pointer will be pointing now बच्चों towards 2. So what does this means? हमारी लिस्ट यहां से स्टार्ट होती है हेड पॉइंटर से फ्रॉम जुबैदा. देन जुबैदा बता रही है कि आगे लिस्ट कैरी ऑन होगी टुवर्ड्स 2 हम्माद. देन हम्माद बता रहे हैं अली, अली बता रहे हैं सैफ और सैफ बता रहे हैं कि आपकी लिस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी? एंड हो जाएगी. So this is how बच्चों we insert an element in a list. ठीक है, this is how we insert an element in a list. Now
Let's write down the pseudocode for the initialization of the list. So let's see. हम हेड से चला रहे हैं अनस. यस, वी कैन डू दैट एज वेल. अनस बोले सर उल्टा चल रहा है. वी कैन, अभी मैं हेड से चला रहा हूँ इसको, तो वी कैन डू दैट एज वेल कि आपका पहला एलिमेंट मैं सेव करके फिर आगे पॉइंट करवा सकता हूँ. बोथ वर्क्स फाइन. दोनों चलते हैं आपके पास. ठीक है, दोनों दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इसके अंदर. आई थिंक मुझे याद आता है शायद पहले मैंने सैफ का पॉइंटर, अली अली का पॉइंटर आसान करवाया था. तो बोथ वर्क्स फाइन, दोनों चलते हैं आपके पास. ठीक है, अगर आप चाहें तो उस ऑर्डर में भी कर सकते हैं. नाउ बच्चों, लेट्स इनिशियलाइज द स्टफ. जरा यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं. मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया डिक्लेयर. अच्छा, वन थिंग बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं. देखो बच्चों, लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए आप लोग को पता है वी यूज अ नोड, एंड नोड कंसिस्ट ऑफ डाटा इन पॉइंटर. हम लोग एरे बनाते थे नोड की सूडो कोड्स के अंदर. बट इन पाइथन, पाइथन के अंदर we can create separate arrays. One array will be dealing with data and the other array will be dealing with the pointers. We can also use object oriented programming to declare the linked list. ये काम भी हम लोग परफॉर्म करेंगे, बट नॉट राइट नाउ, थोड़े टाइम बाद. ठीक है, so we can do both. ये दोनों ऑपरेशन, use object oriented programming or we can use two separate arrays to define. So let's see. मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करना स्टार्ट करा. डिक्लेयर फ्री पॉइंटर, head pointer, that will be equal to, sorry, not equal to, that means the data type will be integer. We have another pointer, we have a constant as well. Constant, null pointer will be equal to -1. So this is how we define constant in pseudocodes. Further, we have two arrays. Let's say I named it as my list. It will be an array indexing from 0 till 9, total 10 elements, and the data type will be of course string. Further, I declared the next array my list pointer, and this will be an array 0 till 9 of integer of course. Now I need to initialize the values बच्चों. तो आप लोग को पता है at the starting of the code free pointer is pointing towards 0, and head pointer is pointing towards -1. You have seen कि initially saf का pointer 1 को, 1 का pointer 2 को, 2 का pointer and so on. तो हमें ये भी इनिशियलाइजेशन करवाना है, तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया सिंपली.
for index is equal to 0 to 9. The first value that I initialize, my list pointer index will be equal to index plus 1. So you people know the first value of index बच्चों is 0. तो मैंने बता दिया 0 का pointer should point towards 1 and so on. 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4. And similarly मैंने यहाँ पे my list index I initialize this with null. तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, दे विल बी इनिशियलाइज्ड विद नल. और मैंने अपना फॉर लूप भी यहीं पे क्या कर दिया बच्चों, एंड कर दिया, एंड फॉर. नाउ एक मसला इस कोड के अंदर ये आएगा कि द 9th इंडेक्स विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 10th बिकॉज 9 plus 1 इट विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स 10. बट व्हाट वी वांट कि हमारा आखिरी एलिमेंट किसको पॉइंट करे, नल को पॉइंट करे. सो व्हाट वी कैन डू, मैंने सिंपली यहाँ पे ये अलग से डिफाइन कर दिया, माई लिस्ट पॉइंटर नाइन should be equal to -1. So this is the initialization बच्चों that we did for our linked list. हमारी लिंक लिस्ट की इनिशियलाइजेशन बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म कर ली. आई होप आप लोगों को यहाँ तक कोई क्वेरी नहीं होगी, कोई क्वेश्चन नहीं होगा, एवरीथिंग इज क्लियर. सो आज इसको अब यहीं पे हमें होल्ड करना पड़ेगा बच्चों. द रीजन इज के ग्रुप 1 भी यहीं पे हमारे पास एंड हो गया था, तो आप लोग को भी मैं यहीं पे होल्ड करूंगा बिकॉज बोथ ग्रुप्स आर रनिंग इन पैरेलल. So that's why we have a question. Good. Sir, instead of -1, can we write null pointer? Yes, of course. Thank you, Alisha beta. वरना यूज ही नहीं किया मैंने तो null pointer यहाँ पे. So we can write null pointer and we can write over here as null pointer as well. ठीक है, so we can do this as well. तो बच्चों आज इसको हम लोग यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाअल्लाह अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. वी आर गोइंग टू सी हाउ टू राइट द कोड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन द लिस्ट, how to write the code to remove an element from the list, the pseudo codes, and of course the programming code. And the last code will be how to search for an element in a linked list. So these 3 codes are left. ये तीनों कोड करने के बाद फिर हम लोग अपने आखिरी डेटा स्ट्रक्चर के मूव करेंगे, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी ट्री. ठीक है, so thank you everyone. Allah Hafiz, take care, bye bye. Inshallah we will be meeting on Thursday tomorrow. Allah Hafiz, bye.